مسیح خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف و تمجید ہو آج کے خوبصورت دن کے لیے، اس صبح کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اچھا ہوتا کہ وہ تمام لوگ جو ابھی راستے میں ہیں اور آنے والے ہیں وہ پہنچ چکے ہوتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، لیکن چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ پروگرام 1 گھنٹہ لیٹ ہوگا، شروع ہوگا، تو ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ خدا کے منصوبے کے اندر ہے، ان کے دل کے اندر زیادہ پیاس ہے اور وہ خدا کے فضل سے اس وقت خدا کی حضوری میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سیمینار کا پہلا سیشن شروع کرنے میں چاہ رہا ہوں۔ اپنی نوٹ بکس کو اپنے پاس رکھیں۔ مجھے تیز بولنا پڑے گا اور آپ کو تیز لکھنا ہوگا کیونکہ وقت کم ہے، اس کے بعد پاسٹر جان دوسرا حصہ لیں گے، لیکن میں صرف دعا کے تعلق سے تھوڑا سا تمہید باندھنا چاہتا ہوں چھوٹی سی، اور وہ یہ ہے کہ دعا کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ انسان کا خدا سے باتیں کرنا۔ وہ اس کی سنتا ہے اور ہم بولتے ہیں۔ آج تک شاید ہم یہی سوچتے رہے ہیں کہ دعا صرف مانگنے ہی کا نام ہے، کہ ہم مانگتے رہیں۔ یہ جو میں آپ کو میتھڈ بتاؤں گا یہ کہیں پر بائبل کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس ترتیب سے ہے، لیکن جب میں نے اس کی اسٹڈی کی اور میں یہ کئی سالوں سے ایسا کر رہا ہوں تو جو یہ میرے نظریات ہیں، یہ میرے ویو ہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس کے وسیلہ سے، میں نے چونکہ برکت پائی اس لیے آپ بھی برکت پائیں گے۔ جب ہم پیدائش کا مطالعہ کرتے ہیں تو آدم کی دوسری نسل سیت، اس وقت ہی دعا کا آغاز یہوہ نام سے شروع ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب ابرام تھا تب بھی وہ دعا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب ابرام سے وہ ابراہم ہو گیا تب بھی اس نے دعا نہیں چھوڑی، اور وہ مرد دعا تھا، وہ دعا کرنے والا شخص تھا۔ اس کے بعد ہم موسیٰ کے بارے میں، جس کے لیے نو ڈاؤٹ کہ وہ بڑا ہی عظیم شفاعت کار تھا۔ اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں، ایلیا، الیشا، حزقیہ، عزرا، نہمیہ، ایوب، سیموئیل، داؤد، یسایہ، یرمیہ، دانییل، حزقیل، ہوسیہ، یونا، حبقوق، صفنیہ، زکریا، یہ تمام نبی دعا کرتے تھے، اور یہ شیوہ پیغمبری ہے دعا کرنا۔ یہ نبیوں کا شیوہ ہے کہ وہ دعا کریں، اور یہ ایمانداروں کا بھی شیوہ ہے کہ وہ دعا کریں۔ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے جس کو میں سمجھتا ہوں 2-3 گھنٹے کے سیشن میں بھی اس کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا، لیکن ہم سپیڈ سے سیکھیں گے کہ میں نے جو آج پوائنٹ رکھا ہے وہ ہے، مضمون جو ہے وہ ٹاپک ہے، اور یہ ہے مؤثر دعا، افیکٹو پریئر۔ بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، لیکن شاید آج ہم دیکھیں گے کہ وہ شاید افیکٹو پریئر نہیں ہے، وہ مؤثر دعا نہیں ہے، وہ صرف دعا ہے مانگنے کا۔ ایکچولی ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہم مانگتے رہیں خدا سے، یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے، میرے بیٹے کو نوکری دے دے، مجھے نوکری دے دے، وہ کر دے، یہ کر دے، میرا بچہ بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور اس طرح کی یہ چیزیں، یہ دعا ہے۔ لیکن یہ دعا میرے بہنوں، میرے بھائیوں، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا ہے خدا کے ساتھ باتیں کرنا۔ تو باتیں یک طرفہ نہیں ہوتی، یہ مکالمات ہیں۔ ہم نے مکالمہ خدا کے ساتھ کرنا ہے، اور جب ایک بندہ مکالمہ کرتا ہے تو پھر دوسری طرف سے اس کا جواب بھی آتا ہے۔ اگر جواب نہیں آتا تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سناتے رہیں اور وہ سنتا رہے، اور اس کے بعد کام ختم، نہ آپ کو سمجھ آئے گی نہ اس کو سمجھ آئے گی، کیونکہ آپ نے پوری دعا کی نہیں ہے۔ تو دعا مکالمہ ہے، اور یہ مکالمہ خدا کے اور انسان کے درمیان ہے، اور اس لیے ہم آج ایک مؤثر دعا کو سیکھیں گے کہ ہم مؤثر دعا کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ میرے تھاٹ ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پسند آئے، لیکن یہ بائبل میں سے پروف کیے جائیں گے۔ مؤثر دعا کا جو پہلا قدم ہے وہ ہے ستائش، ورشپ۔ دعا کرنے کی ترتیب میں پہلا قدم ستائش۔ اب ہم خدا کے فضل کے تخت کے سامنے جانے لگے ہیں۔
अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको साथ साथ दुआ भी करवाना सिखाता कि दुआ करते कहते हैं, सताइश होती कैसे है। अब आम इंसानों के, आम बादशाहों के दरबार के अंदर जाते हैं तो पहले उसकी बड़ी बड़ाई करते हैं, तेरा इकबाल बुलंद हो, तेरी सल्तनत का कोई अखीर ना हो, तू बड़े, तेरी सल्तनत बड़े, बहुत सारे अल्फाज आम बादशाहों के लिए बोले जाते हैं। लेकिन हम आसमान और जमीन के मालिक के कुल के पास जाने वाले हैं, उसके फजल के तख्त के सामने जाने वाले हैं, इसलिए हमें उसके सामने दुआ करने की जरूरत है। इमाम 7 बाब और उसकी 49 आयत में लिखा है, स्क्रीन के साथ आप बाइबलों की तरफ ना ध्यान करें, आप लिखें और ये बाइबल हवाले लिखते जाएं। खुदा फरमाता है, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है। तो आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पांव की चौकी। हम कहां बैठे हैं? हम जमीन पर पांव की चौकी में, और वो आसमान पर है। और उस आसमान के खुदा के सामने जब आए हैं तो फिर हम उसकी प्रस्तुति करनी है, हमने उसकी सताइश करनी है। हम जमीन पर बैठकर उसके तख्त को अपने दरमियान लगाना चाहते हैं। ज़बूर 32-22 और उसकी 3 आयत के अंदर लिखा है, लेकिन तू कदूस है जो इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। अब आपने दुआ करनी है, अब खुदा बाप के तख्त के सामने है, उसके फजल के तख्त के सामने है, तो अब आपने सताइश के साथ, प्रस्तुति के साथ इसका आगाज करना है। शायद हम इससे पहले इस तरह नहीं करते रहे, बल्कि हमने मांगना शुरू कर दिया है। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो मांगने का स्टेप है वो कहां पर जाता है। हमने एक्चुअली रॉन्ग दुआ करते हैं। हम खुदा का तख्त लगाए बगैर, जिससे हमने अपनी दरखास्तें, अपनी पिटीशंस देनी है, जिसके सामने अपनी इल्तजाएं रखनी है, वो तो वहां पे है ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि आपने उसकी प्रस्तुति नहीं की। तो जब आप प्रस्तुति करेंगे तो वो आपके दरमियान उतरेगा। आप उसका तख्त लगा रहे हैं, आप हम तो सताइश के सबब से उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके लिए आए, और वो आएगा जब आप प्रस्तुति करेंगे। अब दुआ में हम तो सताइश का बेहतरीन खूबसूरत नमूना मैं आपको दिखाऊंगा। तवारीख की पहली किताब, उसका 29वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत के अंदर लिखा है, ये दाऊद दुआ कर रहा है। ये याद रखें कि ये दाऊद की दुआ है। वो कहता है, ऐ खुदावंद, अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ आसमान और जमीन में है तेरा है। ऐ खुदावंद, बादशाही तेरी और तू बहसियत सरदार सबों से मुमताज है, और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती है, और तू सबों पर हुकूमत करता है। तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, और सरफराज करना और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। और दाऊद ऐसे अपनी दुआ का आगाज करता है। तो हम अपनी दुआ को जब शुरू करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? हम गीत गाकर, कोर्स गाकर, और हम अपने अल्फाज को जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन लफ्ज तारीफी हो, मांगना ना शुरू करें। अब मांगने का वक्त नहीं आया, अब शुक्रगुजारियां ना करें, अब वक्त नहीं है। अब वक्त है सिर्फ और सिर्फ उसका तख्त लगाना, उसकी तमजीद करना, उसकी सताइश करना। अब इसके लिए आप गीतों का इंतखाब कर सकते हैं, और वो जो मौजू है, अक्सर मैं तारीफ में, आए जी खुदावंद की सताइश करते हैं। सताइश क्या है? दिल दा मैं है कमजोर ते यसू मैनू सांभ। इसमें तारीफ किसकी हुई है? कोई खुदा की कोई तारीफ नहीं है। ये तो आप अपना रोना रो रहे हैं कि दिल दा मैं कमजोर ते यसू मैनू सांभ। ये तो दुआ आप कर रहे हैं, ये प्रस्तुति नहीं है, ये सताइश नहीं है। या हम कल शाम को भी हमने गाया था, मैं हूं बेफल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। कितनी अजीब बात है, बाइबल को पढ़ा नहीं है और ये गीत लिख दिया, और हम सारे ईमानदार गाते रहते हैं, मैं हूं बेफल। अगर मैं बेफल हूं, यहूदा का आम था, तो उसको आखिरी बात में पढ़े कि हम क्या है। अगर ये कहते हैं तो फिर हम खुदा के लोग नहीं हैं। अगर रूहुल कुद्स हम में बसा हुआ है तो फिर हम फलदार हैं। हम बेफल नहीं है, हम बेशजर नहीं है, हम बादल, ऐसे बादल नहीं है जो बरस चुके हैं, हम ऐसे नहीं है। इसलिए सताइश जब की जाती है तो फिर खुदा की सताइश है। फिर कमियां ठीक है, घाटे ठीक हैं, लेकिन वो नहीं जो बाइबल के खिलाफ बात है, वो तालीम जो बाइबल के खिलाफ है, उसको कभी ना छेड़े। हो सकता है शायर हो बंदा, हो सकता है वो थियोलॉजी को ना समझता हो, बाइबल को ना समझता हो, लेकिन हमें भी उनके पीछे लग के वो ही नहीं गाते रहना जो वो गाते रहे हैं। हमने इसके लिए बाइबल की तरफ रजू करना है। मैं जरूर आपको यहूदा के खत में लेके जाता, लेकिन वक्त नहीं। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि हमें खुशी के साथ खुदावंद की सताइश करनी है और उसके नाम को जलाल देना है।
रात को बहुत ही खूबसूरत, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू ले जलाल, जब ये गीत गाया गया मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि हम खुदा के फजल के तख्त के सामने आए हैं, उसके तख्त के सामने आए हैं। उसकी 19 आना शुरू हो जाएगी जब हम उसको जलाल देना शुरू करेंगे, जब उसकी तारीफ के अंदर अल्फाज बोलना शुरू करेंगे, जब हमारे मुंह से उसकी सताइश निकलेगी, तो वो अपने लोगों बनी इसराइल की हमदो सना पर तख्तनशी होता है, तख्तनशी हो जाएगा। वो तारीफ के लायक है, वो तमजीद के लायक है, वो सताइश के लायक है, वो जिंदा खुदा है। जितनी उसकी तारीफ करें, जितनी उसकी हम्द करें, वो बहुत ही कम है। इसलिए आप कितनी तारीफ कर सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट तो कर सकते हैं, 15 मिनट, मैं तो घंटा घंटा भी तारीफ कर सकता हूं उसकी खुदा के हुजूर में। और इसके लिए आप ज़बूर को पढ़ा करें। अगर आपने तारीफ करनी है खुदा की, सीखें दाऊद किस तरह खुदा की तारीफ करता है। आप दाऊद की तरफ रजू करें और सीखें कि वो किस तरह तारीफ करता है, और आपको भी तारीफ करनी चाहिए। और जब आप इन स्टेप्स को आप सुनेंगे और इसके बाद इस पर अमल करना शुरू करेंगे, मैं कहता हूं जो 15 मिनट दुआ करता है वो 1.5 घंटा 2 घंटे दुआ कर सकता है। और अगर 5 मिनट एक स्टेप पे लें तो आप 1 घंटा हर रोज खुदा की हुजूरी में बैठ सकते हैं। जो दुआ आज तक करना नहीं समझे, जिनको पता नहीं है, जो दुआ के अंदर बालग नहीं है, वो जान जाएं कि दुआ करना मांगना नहीं है। हम भीख वाले नहीं है कि हम भीख मांगते रहें हर वक्त। हमारा खुदा के साथ रिलेशन होना चाहिए, और रिलेशन उस वक्त होगा जब हम खुदा की हुजूरी में बैठते हैं। ये जो आपके सामने एक सेंटेंस है, God speaks to those who take time to listen and listen that who take time to pray। खुदा उनसे बोलता है जो सुनने के लिए वक्त निकालते हैं, और वही सुनते हैं जो खुदा के लिए उसे वक्त देते हैं। अगर हम खुदा को वक्त देंगे तो फिर खुदा हमसे भी बातें करेगा, फिर आपको खुदा की हुजूरी में मजा आएगा, फिर आपको खुदा की हुजूरी में जो है वो आप आगे बढ़ेंगे। और खुदा का बंदा एक खादम है, दुआ करने वाला शख्स था, सैमुअल चाविक उसका नाम था। कहता था कि जल्दबाजी जो है वो दुआ की मौत है। आप कहीं दुआ कर रहे हैं और जल्दबाजी में आप सब कुछ खत्म करके चल, दुआ की मौत है, दुआ नहीं हो रही। खुदा से आप बातें नहीं कर रहे, खुदा को तो आप वक्त नहीं दे रहे। आप तो अपनी प्रॉब्लम को खुदा को बता रहे हैं। आपने खुदा के साथ तल्लक कैसे कायम किया, आप कैसे उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? खुदा उनसे बोलेगा जो सुनने के लिए वक्त निकालते हैं, जिसे वक्त देते हैं। वक्त दें खुदा की जिंदगी में, और ये बहुत जरूरी है इस आखिर जमाने के अंदर दुआ का करने। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम दुआ करते हैं, लेकिन दुआ करना नहीं आती, पता नहीं खुदा के हुजूर में कैसे वक्त गुजारना है। वक्त गुजारने के लिए जरूरी है कि हम पहले उसकी क्या सताइश करें। ज़बूर 95 और उसकी पहली 6 आयत में आपके सामने पढ़ता हूं। ये खुदावन की हमदोस तारीफ के लिए है। आओ हम खुदा के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर हाजिर हों, मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावन खुदाए अजीम है। ये देखिए, ये लफ्ज जो यूज कर रहा है खुदा का बंदा, क्योंकि खुदावन खुदाए अजीम है और सब अल्लाहों पर शाह अजीम है। जमीन के गहराव उसके कब्जा में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समुंदर उसका है, उसने उसको बनाया और उसी के हाथ में खुशकी को तैयार किया। और उसके बाद वो कहता है आओ हम झुकें और सिजदा करें, अपने खालिक खुदावन के हुजूर घुटने टेकें। पहला कदम क्या था इफेक्टिव प्रेयर के लिए? सताइश। अब दूसरा जो इफेक्टिव प्रेयर के लिए कदम है वो है सिजदा, बो डाउन, खुदा के हुजूर में सिजदा करना है। आपका ईमान होना चाहिए कि आपने जो अब प्रस्तश कर चुके हैं, आपने 5 मिनट प्रस्तश की, आपने 10 मिनट प्रस्तश की, जैसा आप खुदा के साथ तल्लक है, जितनी आपकी बाइबल की स्टडी है और जितना आप खुदा के हुजूर ठहरते हैं, उसके मुताबिक आपने जितनी प्रस्तश की, उसके बाद जरूर है कि आप खुदा के हुजूर में सिजदा करें। और हर एक इबादत का एक जुज होना चाहिए। मैं तो अपनी जब हमारी सर्विस होती है, मेरे बहुत सारे लोग जो मेरे पास बैठते हैं उनको पता है कितने